شہرنامے میں آپ کو خوش آمدید۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی موٹر وے M5 کے قریب مسافر کوچ اور ٹرالر میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 8 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی موٹر وے M5 کے قریب مسافر کوچ ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 7 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 8 شدید زخمی ہوئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ہلاک اور زخمیوں کو ریسکیو اہلکاروں نے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین، 2 بچے اور 3 مرد شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مسافر کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی۔ رجحان کے پہاڑی سلسلے میں تیز بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ رجحان کے پہاڑی سلسلے میں تیز بارش کے باعث سستی جویا میں پانی گھروں میں داخل ہونے لگا ہے۔ متاثرین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوسری جانب جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں اور قبل بھی زمان روڈ ٹوٹ گیا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے آمد و رفت کے لیے عارضی پل نصب کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کی وجہ سے زمان روڈ پر بنا ہوا پل بھی ٹوٹ گیا ہے اور پل پر موجود لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ علاقے کے لوگوں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ چنیوٹ سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں بارش نے ضلعی افسران کے دعووں کی کلئی کھول دی ہے اور محلہ شیر آباد پرائمری اسکول بارش اور سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گیا ہے۔ سینکڑوں طلبہ اور اساتذہ تعلیمی سرگرمیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ دیوار منہدم ہو گئی ہے اور جس کے باعث گندے پانی میں علاقہ ڈوب گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ میونسپل کارپوریشن محکمہ تعلیم ڈپٹی کمشنر چنیوٹ تعلیمی سرگرمیوں کو بحال کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اہلیان علاقہ اور طلبہ کے والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا جلد از جلد نوٹس لیں۔ جنگ میں بہن بھائی پر قربان ہو گئی ہے۔ جنگ سٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب ترقیاتی کاموں کے درمیان گہرے گڑھے میں 5 سالہ سیف اللہ ڈوب گیا۔ بھائی کو ڈوبتا دیکھ کر بہن مروہ نے بھی چھلانگ لگا دی مگر بدقسمتی سے بہن بھائی کو نہ بچا سکی اور خود بھی بھائی کے ساتھ جاں بحق ہو گئی۔ جی بالکل، دریائے چناب میں سیلابی ریلا اس وقت تریمو بیراج سے گزر رہا ہے اور اس وقت ضلعی ترجمان کے مطابق پانی کی آمد 91,000 کیوسک جبکہ اخراج اس کا 82,000 کیوسک بتایا جا رہا ہے۔ دریائے چناب میں آنے والے سیلابی ریلا سے 20 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ علاقہ مکین خاصے پریشان ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فلڈ ریلیفز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں پر شہریوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے یہاں پر عملہ تعینات ہے، جبکہ ریسکیو 11/22 کی جانب سے یہاں پر بوٹس کا بھی لگائی گئی ہیں جہاں پر متاثرین کو جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر سیلابی ریلے کے باعث یہاں پر ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں وہ متاثر ہو چکی ہیں اور یہاں پر جو سبزی تھی، فصلیں تھی اور جانوروں کے لیے چارہ بالکل نایاب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بارشوں کی شدت کے باعث ڈیرہ غازی خان کے مضافاتی علاقوں میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے بیورو چیف شیخ رمضان ندیم اپنی اس رپورٹ میں۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر، ڈپٹی کمشنر مہار شاہد زمان لک، ڈی پی او سید علی کا لوہار والا کا دورہ رود کوئی وڈور کے سیلابی پانی سے متاثرہ علاقے میں ریلیف کاموں کا معائنہ کیا۔ متاثرہ لوگوں اور ان کے مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی۔ عوامی سہولیات کے لیے سرکاری اسکولوں کی عمارتوں کو متاثرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ متاثرہ افراد کے علاج معالجہ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جانوروں کی
वैक्सीनेशन के लिए अदवायात की वफर मकदार रिलीफ कैंपों में मौजूद है। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने मौका रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का जायज़ा भी लिया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक मुश्तरका काविशों से सैलाब जैसी कुदरती आफत से निपटने के लिए हर एक किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मकामी लोग अपनी फैमिलीज़ को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और इंतज़ामिया से ताउन करें। ज़िला डेरा गाजी खान में रोदकोइयों के मुतासर अफराद को तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर महार शाहजमान लक ने कहा कि ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान व मुलाजमीन मुतासरीन की इमदाद के लिए हर वक्त मौजूद हैं। DPO सैयद अली ने कहा कि मुतासरीन सैलाब के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रुख करते हैं राजनपुर का, जहां एक तरफ कोहे सलमान पर बरसने वाली बारिशों ने इलाके में तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ मॉनसून की मूसलाधार बारिशों ने कच्ची आबादी के दर्जनों मकानात को शदीद मुतासर किया। इस हवाले से मज़ीद बात जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे AD आमिर की इस रिपोर्ट में। हिल टॉरेंट के सैलाबी रेले दर्जनों गांव देहात को मुतासर करते हुए दरिया सिंध में दाखिल हुए तो दरिया भी बिफर चुके हैं, जिससे नशेबी इलाकों में लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। परेशानी अभी खत्म नहीं हुई कि मानसून की बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने पूरे जनूबी पंजाब को अपने घेरे में ले लिया। मुसलसल 15 दिन वक्फे से बरसने वाली बारिशों ने सबका 100 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। मूसलाधार बारिशों के नतीजे में कच्ची आबादी के मकीन शदीद मुतासर हुए, जिससे दर्जनों कच्चे मकान मुनहदम हो गए। मेरे घर के हालात पानी न डुबा भरिया करे तब 15 रस्ते मेरे का निके निके मेरे बाल क्या करूँ। बनवा दो मेहरबानी करके, साड़ी छत ढह गई है, साढ़े निके निके बाल हैं, असा किदे बनू, साढ़े दीवारें ही खराब हैं, हालात कहनी, वाशरूम भी सादा कहनी, असा किथा बनू। बाजा बनवा दो, एडी छत हा पी जी ठिकी में हाल छापे, ना कि सुमहांडी जाहे ना बहांडी जाहे, छोरे नहीं दौरे मेरे बच्चे ने कोई नहीं, अपनी अल्लाह तरफी करूँ तो समझ ना, मैं हाथ जोड़ी खड़ी मेरा बच्चा। दिहाड़ीदार रंगसाज गुलाम शबीर का घर हालिया बारिशों के नतीजे में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसकी पूरी फैमिली मुखैर हजरात से अपील कर रही है कि उसके घर को दोबारा तामीर कराया जाए। कैमरा टीम के साथ AD आमिर थईम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। जतोई का रुख करें और आपको बताएं कि नवाही इलाके जतोई जनूब के करीब नहर में 30 फीट का शिगाफ पड़ने से कई मकान ज़ेरे आब आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसलात तबाह हो गई हैं और मुकामी अफराद और महकमा अनहार के अमले ने असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की निगरानी में 8 घंटे की कोशिश के बाद शिगाफ पर काम करना शुरू किया। नवाही इलाके जतोई जनूब के करीब नहर में 30 फीट का शिगाफ पड़ने से कई मकान ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं और मुकामी अफराद और महकमा अनहार के अमले ने असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की निगरानी में 8 घंटे की कोशिश के बाद शिगाफ पर काम शुरू किया। इलाका मकीनों का कहना है कि गरीब किसान हैं, माली नुकसान का अजाला किया जाए। यहाँ आपको बताएं कि जाम शोरो दरियाए सिंध के मुकाम पर तफरीह के लिए आने वाले शहरी सहूलियात के फुकदान के सबब इंतज़ामिया से नाराज दिखाई देने लगे हैं। सिक्योरिटी ना होने और नज़्म व ज़ब्त कायम ना होने से फैमिलीज़ को दुश्वारी का सामना है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं जाम शोरो से रियाज मीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम दरियाए सिंध अलमंजर के मकाम पर, जहां पर बरसात का मौसम होते ही इर्द गिर्द के जो शहर हैं शहरी अलमंजर का रुख करते हैं। यूं तो ये पॉइंट अलमंजर एक तफरीगाह कहा जाता है, पर यहाँ पर नाकस सिक्योरिटी और यहाँ पर कोई भी सहूलियत नहीं है। आइए इस हवाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अलमंजर पे आए, यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम है और यहाँ पे बच्चे भी बहुत अच्छे इंजॉय कर रहे हैं और बेहतरीन माहौल है यहाँ का। और माशाल्लाह आवाम हैदराबाद के आवाम को चाहिए यहाँ पे आए, घूमें और एंजॉय करें इंशाल्लाह। सारा पूरी हैदराबाद, स्पेशली बरसात के मौसम में पूरी हैदराबाद इधर पूरा शहर आता है और एंजॉय करता है। इस हवाले से हम हुकूमत को भी अपील करना चाहेंगे कि काइंडली
इस पे तवज्जो दें और इसको और अच्छा बनाएं ताकि दूसरे हमारे शहर से जो भी आते हैं इंटीरियर से या कहीं से भी आते हैं वो भी आके एंजॉय करें और इस मकाम को और ऐसा भरपूर बना दें। और हैदराबाद में सिर्फ यही एक वाहिद प्लेस है जहाँ पे बंदा खुल के एंजॉय कर सकता है। तो हमारी ये हुकूमत से अपील है कि इस पे थोड़ी ख़ास तवज्जो दें और फैमिलीज़ के लिए ख़ास रिस्पांस दें। इधर के रोड्स जो हैं उनको और अच्छा बनाएं। शुक्रिया। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और फैमिलियाँ भी आप देख रहे हैं खुद, इधर बहुत फैमिली आ रही हैं। यहाँ एक चीज़ की कमी हमें महसूस हो रही है, यहाँ पे कोई जो है ना वो डिसिप्लिन नहीं है। फैमिली आ रही है, उनको जो है ना ज़्यादातर तकलीफ़ हो रही है। हम लड़के आ रहे हैं, हम तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फैमिली वालों को बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ हुकूमत को चाहिए कि ऐसा इंतज़ाम का जो है ना माहौल रखें ताकि फैमिली भी ज़्यादातर आए। यहाँ और पिकनिक पॉइंट नहीं है, जब भी बरसात होती है तो लोग इधर अलमंजर का ही रुख करते हैं और ये अच्छी पिकनिक पॉइंट है। इसको हुकूमत को चाहिए कि इसकी जो है ना वो सही मैनेजमेंट यहाँ रखे। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना था कि यूं तो ये जामशोरो ज़िलों में यहाँ पर ऐसी कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर लोग तफरीह करने जाएं। यहाँ पर तफरीह तो हम करने बिल्कुल आते हैं, पर यहाँ पर कोई भी सहूलियात यहाँ पर नहीं है और ये डेंजर जोन बना हुआ है। यहाँ पर दरिया पे कोई भी जानी या माली नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं है। कैमरामैन इरफान मल्लाह के साथ रियाज मीर, मेट्रो वन न्यूज़, जामशोरो। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद बिजली और गैस की लोड शेडिंग तो बर्दाश्त कर ही रहा था, अब पीने के पानी को भी शहरी तरस रहे हैं। कुछ इलाकों में पानी गंदा और बदबूदार आ रहा है तो कहीं बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा। तफसीलात हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और जितना बड़ा शहर है उतने ही ज्यादा बड़े इस शहर के मसाइल हैं। बिजली और गैस की बंदिश से तो लोग परेशान थे ही, अब तो पीने के पानी को भी शहरी तरस रहे हैं। 20 से 22 साल हो गए यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता। मीठा पानी की लाइन टूटी हुई है। हम 5-6 दफा नाजिम को दरखास्त दे चुके हैं। हर दफा जो भी आता कहेगा हम डलवाएंगे। आज तक पानी लाइन किसी ने भी नहीं डलवाई है। सब जगह लाइटों का इशू है। आफन्ने में कभी लाइट नहीं होती है, कभी ठंडी सक पे लाइट नहीं होती, कभी जामचूरे में लाइट नहीं होती। जहाँ से पानी हमें मिलता है वहाँ से पानी नहीं मिल पा रहा है, तो हम कैसे आवाम को दे पाएंगे। शहर के बेशतर इलाकों में तो पानी आता ही नहीं और कहीं आता है तो गंदा और बदबूदार आता है। शहरी फिल्टर प्लांट से गैलन और कूलर वगैरह भर भर के गुजारा करने पर मजबूर हैं। यहाँ 5 साल से पानी नहीं आ रहा। 11 नंबर में लाइनों में लग के पानी भरते हैं और अभी भी लेके जा रहे हैं पानी पीने का। आता है तो पानी ऐसा आता है बिल्कुल काला बदबू, जब भी मशीन चलाए बिल्कुल बदबू का पानी आता है। साफ पानी आता ही नहीं है घरों में 5 साल से। हम ना मोटर स्टार्ट करते हैं तो गंदा पानी आ रहा होता है, फिर हम ना वहाँ से लाते हैं भर भर के। हम स्कूल जाए यहाँ पे हम पानी भर भर के लाएं। घर तो हमने खाली रखा है और बिल भेज देते हैं, पानी आता ही नहीं है। और आता है तो इतना गंदा आता है, मेला पानी। अभी यूसियाँ बनी है, चेयरमैन बन गए हैं, इतना फंड मिल रहा है, 7-7 12-12 लाख रुपए इनको मिल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, उन फंड का ही नहीं पता चल रहा। तो कहाँ लग रहा है, यहाँ पे कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई पानी की लाइन एक नहीं डल सकती, तो क्या फायदा इन यूसीओ का। हैदराबाद के शहरियों ने चेयरमैन वाटर बोर्ड व मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो से मुतालबा किया है कि शहर में पानी के मसले को फिलफौर हल करें। कैमरामैन आशिक वासी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। पदोकी में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई। मुखालफिन की फायरिंग से 2 सगे भाई मौके पर जाँ बहक हो गए। पदोकी थाने सदर की हदूद में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या। जमीन के तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या 2 ग्रुपों में जमीन के तनाज़े पर पेश आया। भाइयों की शिनाख्त 37 साला तनवीर और 32 साला जहांगीर के नाम से हुई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया गया है। वालदा की दरख्वास्त पर थाना सदर पतोकी पुलिस ने 10 नामजद और 4 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यहाँ आपको बताएं कि मीरपुर खास में महकमा तालीम सिंध ने 139 असातिज़ा के तबादले कर दिए। फैसले के खिलाफ मुतासरा असातिज़ा और तंजीम के रहनुमाओं ने एहतजाज करते हुए अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ महकमा तालीम सिंध ने ज़िला अफसरान की हिदायत पर STR पॉलिसी की जवाज़ बनाकर 139 मर्द और ख़वातीन का तबादला किया।
दूसरी तहसीलों के दूर दराज इलाकों में कर दिया गया। मुतासिरा असातिज़ा का कहना था कि इनका जहां तबादला किया गया है वहां उन्हें आने और जाने में कई घंटे लग जाएंगे और इन स्कूलों में पहले से ही इजाफी स्टाफ मौजूद है। इनका तबादला मेरिट के खिलाफ और असातिज़ा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का शाखसाना है। जबरी और जालिमाना तबादलों के खिलाफ इंसाफ के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जंग में दरिया चिनाब का सैलाबी रेला इस वक्त तरीमों के मुकाम से गुजर रहा है। सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल होने लगा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अंसारी से। जी बिल्कुल, दरियाए चिनाब में सैलाबी रेला इस वक्त तरीमो बैराज से गुजर रहा है और इस वक्त ज़िला तर्जमान के मुताबिक पानी की आमद 91,000 क्यूसेक जबकि अखराज उसका 82,000 क्यूसेक बताया जा रहा है। दरियाए चिनाब में आने वाले सैलाबी रेला से 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इलाका मकीन खासे परेशान है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ्स कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने के लिए यहाँ पर अमला तैनात है। जबकि रेस्क्यू 11-22 की जानिब से यहाँ पर बोट्स का भी लगाई गई हैं, जहाँ पर असरीन को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर सैलाबी रेले के बायस यहाँ पर हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें वो मुतासर हो चुकी हैं और यहाँ पर जो सब्ज़ी थी, फसलें थी और जानवरों के लिए चारा बिल्कुल नायाब हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मुकीनों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह लुधियाना में भी शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। तफसीलात नईम खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लुधियाना में यौम आज़ादी के सिलसिले में इज्तिमाई शजरकारी मुहिम का आगाज़ रूह रवां प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इब्रार हुसैन शाह ने अपने दस्त मुबारक से किया। डॉक्टर सैयद इब्रार हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माहौलियात की तब्दीली के पेश नज़र ऑक्सीजन की फराहमी के लिए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी हैं। यौम आज़ादी के सिलसिले में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें फलदार और सायादार दरख्त लगाए गए हैं। इस शजरकारी मुहिम के दौरान अवामुन्नास और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ वियाड़ी के ताउन से मरकज़ी जामिया मस्जिद लुधियाना, मस्जिद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामिया कादरिया तालीमुल कुरान, दफ्तर रेस्क्यू 1122, इक़रा इस्लामिक मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल और जनाजा गाहों में लुधियाना शहर के मज़ाफ़ात में तकरीबन 3 से 4 हज़ार सायादार फलदार पौधे लगाए जा चुके हैं, जिसमें उलमा और तमाम इदारों के हेड्स, अमला, तलबा और तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपना फ़आल किरदार अदा किया। मोहम्मद नईम खान, मेट्रो 1 न्यूज़, लुधियाना। सूबे पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरात में भी शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। मज़ीद बात जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर से। जी शाह साहब, बताइएगा कि आप कौम के नाम क्या पैगाम दे रहे हैं? बस मैं तो यही कहांगा कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। जी अब मेरे साथ सैयद हसन साहब मौजूद हैं। जी शाह साहब आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो जी मैं बड़ा मशहूर हाँ जी मनाजुल कुरान की टीम है वो तवक्कुआत तो बरक्स एक जिहड़ा एक अच्छा काम है इत्थे होने लिया गुजरात दे विच वो मोमदीपुर तो शुरू करन। यहाँ की आलूदा फ़िज़ा को हर तरह से साफ़ करने के लिए इनके साथ मुमिद और मुआविन है और इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान इन्हीं जज्बात के साथ जो है जब हम आगे चलेंगे तो ये एक बेहतर मुल्क और तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा। जी बिल्कुल, मुल्क को तरक्की याफ्ता और बेहतर बनाने के लिए शजरकारी मुहिम ज़रूरी है। जी महंगाई कंट्रोल के मुताबिक प्रोग्राम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से सस्ते बाजार का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
समंदरी में शहरियों के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन महंगाई कंट्रोल प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री उमर सरवर की जानिब से शहरियों के लिए सस्ते बाजार का आगाज कर दिया गया, जहां से शहरी बाजार से कम कीमतों में सब्जी और सब्ज मसालाजात खरीद सकेंगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब के इस इकदाम को सराहा और बेहतरीन इंतजामात पर समंदरी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बाजार नालों तो बहुत रायत है, म्यारी है, साफ सुथरा निज़ाम है, अच्छा बहुत आज दे महंगाई के दौर च अच्छा रिलीफ है। जो भी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं बाज़ार से कम कीमत पे मिलती हैं, यानी कि बहुत फ़र्क है, यानी कि बाज़ार की निस्बत यहाँ पे हमें सस्ती मिलती हैं चीज़ें। हुकूमत की तरफों जो स्टाल लगे है बाजार नालों जो रेट ना इतने बहुत घट वा रेट। सस्ते बाजार के हवाला से दुकानदारों का कहना है इंतजामिया की जानिब से अवामुन नास को सस्ती और मेयारी अशिया फराहम करने की हदायत की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर वालों सानू हदायत की गई है भी इत्थे सब्जियां म्यारी और अच्छियां देनियां वा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि दीगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि शहरी 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सकें। अब रुख करेंगे शोरकोट का, जहां दावत इस्लामी के शोबा FGRF की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद बात जान लेते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब काला शोरकोट सिटी में। दावत इस्लामी जहाँ पर दीगर शोबा जात में अपना जो है काम जारी रखे हुए है, वहीं पर FGRF जो दावत इस्लामी का शोबा है वो फलाही कामों में भी अपना जो है नुमाया कारकर्दगी के साथ इस वक्त अपना काम जारी रखे हुए है। उसमें मेन स्ट्रीम में इस वक्त जो है शजरकारी मुहिम है जो 1 अगस्त से जारी है। इसके तहत जनाब काला शोरकोट सिटी में जो है शजरकारी की गई है, जिसमें जनाब कॉलेज का स्टाफ भी है, खालिद गनी चौधरी साहब और दावत इस्लामी के FGRF के डिवीज़न ज़िम्मेदार फैसलाबाद वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। सबसे पहले तो हम इंतहाई मशकूर हैं FGRF के कि उन्होंने यहाँ पे ये जो ड्राइव है प्लांटेशन की, ये जो आज 200 प्लांट्स लेके आए हैं, तो हम जो डिवीज़न के ज़िम्मेदार हैं FGRF के उनके इंतहाई मशकूर हैं। सर आपका ये इनिशिएटिव जो है इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं पोल्यूशन के हवाले से और डिफॉरेस्टेशन जो बढ़ती जा रही है, तो उसमें हम सब का फ़र्ज़ है और आपका ये वाला कंट्रीब्यूशन यकीनन हमारी नस्लों के लिए फ़ायदा मंद होगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो दावत इस्लामी वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि प्लांटेशन हो या कोई भी फलाई काम हो तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और प्लांटेशन में तो ये मैं कुछ पिछले चंद सालों से इनके साथ शामिल हूँ, तो ये शहर में भी प्लांटेशन करते हैं, दीगर इदारों में भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में 1 अगस्त से शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद डिवीज़न में कमो बेश अब तक इस शजरकारी में 26,000 पौधे लग चुके हैं और हमारा हदफ है इस मरतबा का 50,000 से ज़्यादा पौधे हमने फैसलाबाद डिवीज़न में लगाने हैं। जी जैसा कि आपने खालिद गनी चौधरी साहब की और डिवीज़न ज़िम्मेदार फैसलाबाद दावत इस्लामी के FGRF उनकी बात सुनी है कि इस वक्त जो है शजरकारी मुहिम ये सिर्फ़ किसी ख़ास इदारे या ख़ास फ़र्द पे जो है वो नहीं है। हर एक शख्स को चाहिए कि वो अपना अपना एक पौधा लगाए और उसकी आबियारी करके उसको एक मुकम्मल दरख्त बनाए। जी माहौल को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्करनैन अहमद भवन ने वाइल्ड लाइफ पार्क में पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। तफसीलात गुलाम मुर्तज़ा जोया की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ज़िला बहावलनगर की इंतज़ामिया ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कुदरतुल्लाह और दीगर ज़िलाई अफसरान के हमरा पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्त इंसानी ज़िंदगी की बका और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का पौधा लगाना होगा ताकि वो पौधा दरख्त बन के माहौल की स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव का बाइस बन सके। उन्होंने कहा कि शजरकारी मुहिम के तहत ज़िला भर में मुख्तलिफ नौइयत के हज़ारों नए फलदार और फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। माहौलियात आलूदगी और गर्म माहौल को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को सरसब्ज़ शदाब ज़मीन का तोहफ़ा दिया जा सके। चौधरी शफीक के साथ गुलाम मुर्तज़ा जोया, मेट्रो 1 न्यूज़, बहावलनगर।
बच्चों की पसंदीदा खुराक में जालसाजी और धोखाधड़ी के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी और डिप्टी डायरेक्टर नौमान यूनुस की सरबराही में भावलपुर के नवाही इलाके समा सट्टा में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में 600 किलोग्राम ज़ायदुल मियाद चूरन, स्नैक और कन्फेक्शनरी आइटम को तलब कर दिया गया। मालिकान को 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। एक्सपायरी स्टॉक की जाली पैकिंग करके दोबारा मार्केट में सप्लाई किया जाता था। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।